The question is, a light ray is incident at an angle of 45 degree with a normal to a root 2 centimeter thick plate mu equals to 2. Find the parallel shift in the path of the light as it emerges out from the plate. Now let us understand the ray diagram for this question. This is your thick plate made up of some glass material whose refractive index is given as 2. So mu equals to 2. This is the normal to the first phase and it is given the ray is incident at an angle of 45 degree. So this is your incident ray, this is refracted ray and this is emergent ray, and this is 45 degree angle of incidence which I represent by I1, and this is the angle of refraction R1 for the first phase. And you have to find the parallel shift. Now what is meant by parallel shift? It is the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray. Incident ray ko I can proceed forward in dotted line as you can see in the figure, and this is the emergent ray, and this is showing you the distance between the incident ray and the emergent ray, which is called as the parallel shift. This parallel shift is also known by the name of lateral displacement. और आपको इसका थिकनेस जो है थिक प्लेट का इट इज़ गिवन एज रूट 2 सेंटीमीटर. दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट फेस ऑफ दिस थिक प्लेट. स्नेल्स लॉ आपका होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, mu equals to sin I upon sin R. So for the first phase, mu will be equals to sin I1 upon sin R1. आपको mu का वैल्यू 2 is given to you. So 2 equals to sin I1 हमारा हो जाएगा sin 45 degree. As you can see in the figure, angle of incidence is 45 degree. And sin R1 divided by sin R1. So from here I will isolate sin R1. तो इसके लिए first I will put the value of sin 45 degree 1 upon root 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin R1 I will shift on the left side. This goes here and 2 will come in the denominator. sin R1 equals to 1 upon 2 root 2. ये हमको sin R1 का वैल्यू मिल गया है 1 upon 2 root 2. Now from this value of sin R1, I will construct one right angle triangle. This angle is R1, right angle triangle. This is perpendicular, base and hypotenuse. From sin R1 1 upon 2 रूट 2 को हम इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आपका ये हो जाएगा 1 और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2 रूट 2. नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर विच विल गिव यू 2 इंटू 4 विच इज़ 8 माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1. दिस विल गिव यू रूट 7. तो हमारे पास बेस आ गया है रूट 7. अब इस रूट 7 के बेस को और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऑल 3 वैल्यूज़ आर गिवन टू यू. इसको अब हम आगे यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में. एंड अब आपको पैरेलल शिफ्ट का फॉर्मूला, देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरेलल शिफ्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्मूला. Which is given by T. This is the T is representing the thickness of the glass sheet. T into sin I1 minus R1 divided by cos R1. I1 R1 are the angle of incidence and angle of refraction at the first phase of the glass plate. So this formula I will use to find the parallel shift of this question. अब आप इसमें आप क्या देखते हैं कि जो साइन I1 माइनस R1 है, आई कैन मेक यूज़ ऑफ द फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में साइन A माइनस B.
व्हाट इज साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो आपका ये पैरेलल शिफ्ट कितना हो जाएगा, t is given to you in the question √2, so I will put √2 और यहाँ पर हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा ये साइन I1 कॉस R1 माइनस कॉस I1 साइन R1, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, एंड कॉस R1 डिवाइड बाय कॉस R1। अब हम इस ट्रायंगल को देख करके साइन I1 कॉस R1 कॉस I1 साइन R1 सबके वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, √2। अब साइन I1 के लिए आप फिगर में आ जाइए। I1 आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है, तो साइन I1 कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। एंड हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, ये हम लगा देते हैं। साइन 45 होता है आपका 1/√2। नेक्स्ट है आपका कॉस R1। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, कॉस R1 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी √7/2√2, तो यहाँ इंटू √7/2√2 हो गया आपके पास, माइनस कॉस I1 विल बी कॉस 45 डिग्री विच इज़ अगेन 1/√2। देन यू हैव साइन R1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, साइन R1 है 1/2√2, सो इंटू 1/2√2, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का पार्ट, डिवाइड बाय कॉस R1। अब कॉस R1 आप देखिए यहाँ से ट्रायंगल से, कॉस R1 कितना हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ √7/2√2। तो हम डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, √7/2√2, √7 ये अपॉन 2√2, ये न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल होकर के आई कैन राइट दिस वे। नाउ रेस्ट we will do the calculation part। ये बाहर आपका √2 इंटू 2√2 हो जाएगा आपका 4। नाउ लेट अस कम इनसाइड द ब्रैकेट, √7/2√2 इंटू √2 will give you 4 माइनस 1/2 इंटू 2√2 4 हो गया, डिवाइड बाय √7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 आपका ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर्स आर सेम, आई कैन राइट √7 माइनस 1/4, और ये जो डिवाइड बाय √7 है इसको आई कैन राइट दिस वे 1/√7, यहाँ से कैंसिल। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, √7 माइनस 1/√7, √7 माइनस 1, ये अपॉन √7। नाउ दिस √7 इज इन द डिनोमिनेटर, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 मल्टीप्लाई √7 डिवाइड। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका √7 माइनस 1 इंटू √7, ये आपका पैरेलल शिफ्ट चल रहा था, सो
So we have now root 7 minus 1. ये root 7 बाहर था आपका. Root 7 minus 1 and divide by root 7 into root 7, that was 7. Now open the bracket. Root 7 into root 7, 7 minus root 7 divide by 7. Root 7 के हम यहाँ वैल्यू लगा देते हैं. 2.64 divide by 7. Subtract. We will get 4.36 divide by 7. If you divide it, you will get 0.62. तो ये हमारा क्या चल रहा था? पैरेलल शिफ्ट. दिस वॉज रिक्वायर्ड टू फाइंड. पैरेलल शिफ्ट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो आंसर इज 0.62. So this is how the question is solved.